ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعائیات تلاوت کی ہیں. سورہ صف کی دعائیات ہیں. فرمایا کہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اہتمام کر کے رہے گا، اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کیسی ہی ناگوار گزرے. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ اسے تمام دنیا کے ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین کو کیسی ہی ناگوار گزرے. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. پاکستان کا یوم آزادی منانے کے لیے حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر بڑا شور ہے. مقصد سے غافل لوگوں کی قربانیاں پاکستان بنتے وقت ان سے آنکھیں بند کر کے گزر جانے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. گرامی قدر حضرات، 14 اگست ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا. تو شاید نئی نسل کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے، ہمیں بھی یہ بات معلوم اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، لیکن بعض لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھی ہے وہ بھی موجود ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو موجود ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر سارا دیکھا. لیکن بہت زیادہ تعداد، کثرت تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پاکستان کس طرح بنا. اگر کسی آدمی کو کوئی چیز ٹرے میں رکھ کر ایسے پیش کر دی جائے تو وہ کھا تو لے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کس طرح آئی ہے، کتنی کوششیں ہیں اس کے پیچھے، کتنی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں پاکستان بنا بنایا مل گیا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ پاکستان بنتے وقت کیا صورتحال ہوئی، اور وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں جو اپنی تاریخ آنکھیں بند کر کے گزار دیتی ہیں. اپنا ماضی یاد ہونا چاہیے کہ ہم کن حالات سے گزرے ہیں، وہ کون حالات تھے، وہ کیا مقاصد تھے، وہ کیوں ایسی قربانیاں دی گئیں کہ لوگوں نے اپنی مال و جان کی پرواہ نہیں، اپنی عزت و عصمت کی پرواہ نہیں کی. کیا تھا وہ مقصد، کیوں قربانیاں دی گئیں؟ کتنے اہل وطن کو جلا وطن کیا گیا، اور کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا. مسلمان ہند نے کتنی قربانیاں دی، کتنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی، ناموس پامال ہوئی، عصمتیں پامال ہوئی، اور ان کی عزت تار تار ہوئی. اور پھر کتنی سہاگنوں کے سہاگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. کتنے شوروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عزت و عصمت لوٹی گئی اور اس کی دھجیاں بھی کھیلی گئی. اور اسی طرح آزادی کا یہ سفر پھولوں کی سیج پر طے نہیں ہوا. انگریز نے پاکستان آپ کو ایسے کر کے نہیں دے دیا. جب آزادی ملی تو اس وقت بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں ہیں.
जिनसे ये गुजर कर मुल्क हमें हासिल हुआ, और आज़ादी के असूल के लिए हमारे बुजुर्गों के खून और आग के दरिया से उनको गुजरना पड़ा, मगर सच्ची बात यह है कि हमने आज़ादी की नेमत की कोई कदर नहीं की। इस्लाम की भी हमें कदर नहीं, क्योंकि इस्लाम की कदर तो सहाबा को थी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने खून के दरिया बहाए थे इस्लाम के लिए, जंगें की थी, लड़ाइयाँ की थी इस्लाम के लिए, उन्होंने बहुत कुछ माल दिया, जानें दी, जायदादें दी, वतन छोड़े, हिजरतें की, उनको इस्लाम की कदर थी। आदमी जिस चीज़ पर कुछ खर्च करता है उसकी कदर आदमी को होती है। माल, जान और वक़्त, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ पर आदमी लगाता है उसकी आदमी को कदर होती है। हमारा माल वक़्त दीन पर लगा नहीं है, इस तरह लगना चाहिए। हमारी जान दीन पर लगी नहीं है, ना ही मुल्क पर लगी है, इस तरह लगनी चाहिए। हमारा रुपया, पैसा, हमारा वक़्त, ये तीन चीज़ें ना ही हमें दीन पर लगाई है हमने, ना ही हमने मुल्क पर लगाई है, इसलिए हमें इनकी कदर नहीं है। ना कौम को वतन की कदर है, ना दीन की कदर है। और ये कदर उस वक़्त होती है जब आदमी कुछ खर्च करे। एक आदमी एक पोस्टर ही बनवा कर लगाए ना पैनाफ्लेक्स का, तो दूसरा अगर उसको उतार कर फेंके तो वो देखता है मैं तो भी लगा कर है, मैंने ये पैसों का बनवाया और ये इसको उखाड़ रहा है। या कोई अपनी इमारत को तामीर करे, उस पर अपने पैसे लगाए, रकम लगाए, खून पसीने की कमाई लगाए, दूसरा आया तो उसको तोड़ना शुरू कर दे तो वो नहीं तोड़ने देगा उसको, क्योंकि उसको उस पर पैसा लगा है, उसकी उस पर मेहनत लगी है। इस पाकिस्तान के बनाने में हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। जो भी आए पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो इस मुल्क को लूट दे रहे हैं, लूटा नहीं, इस मुल्क में दाखिल हो गए, उन्होंने समझा कि शायद ये हमारी जन्नत है, हम यहाँ पर लूटने के लिए आएंगे और फिर लूटने के बाद चले जाएंगे। इक़्तिदार के मजे लेने के लिए लोगों ने समझा कि ये मुल्क हासिल किया गया है, और किसने समझा कि यहाँ पर सोशलिज्म के लिए ये मुल्क हासिल किया गया है। तरह तरह के लोगों की सोचें, लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अगर अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, और मकसद था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो शहीद हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कुर्बानियां नहीं दी, फिर उनको शहीद पाकिस्तान तो कहा जाएगा, शहीद वतन तो कहा जाएगा, उनको लेकिन शुहदा फी सबीलिल्लाह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शुहदा फी सबीलिल्लाह वो है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए बात करे और उसके लिए जिद्दोजहद करे, और शुहदा फी सबीलिल्लाह में आएगा। और उन लोगों की जो कुर्बानियां हैं, जो उन लोगों का जज्बा है, जो उन लोगों की इज्जतें हैं, जो उन लोगों की नुसरतें हैं, जो उन लोगों का चलना है, वो उस मुल्क को छोड़कर इस मुल्क की तरफ आना है, इंडिया को छोड़कर, हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ उनका पेशकदमी करना है, वो सारा फी सबीलिल्लाह इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए, और उन्होंने एक नारा उस वक्त बुलंद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा जज्बा था इस नारे के अंदर, और ये नारा 1945 में लगाना शुरू किया। या 1945 में ये नारा लगाकर मुल्क के लिए कोशिश करना शुरू की। 2 सालों के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से ये मुल्क इन लोगों को दे दिया। अब इन्होंने इसके साथ क्या किया, दुनिया में याद रखिए सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक मदीना की इस्लामी रियासत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी इस्लाम के नाम पर, दूसरा पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो इस्लाम और पाकिस्तान और कलमे के नाम पर हासिल किया गया था। दोनों का इंग्लिश में जो मीनिंग है उनका एक ही तर्जमा बनता है, एक ही मतलब बनता है कि मदीना और पाकिस्तान। लेकिन देखिए कि मदीना जो है मदीना की तरफ पाकिस्तान गया कि नहीं गया। इन्होंने तो जितना भी सफर तय किया है अमेरिका की गुलामी की तरफ सफर तय किया है, कुफार की गुलामी की तरफ सफर तय किया है। इस्लाम मना करता है कुफार की गुलामी करने से। आज जब कहते हैं ना हम आजाद हैं, हम आजाद इस तरह तो हो सकते हैं कि हमें किसी ने पकड़कर बांधा हुआ नहीं है, लेकिन ज़हनी और फिक्री गुलामी हमारे दिलो दिमाग के अंदर मुसल्लत हो चुकी है। ज़हनी और फिक्री गुलामी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो चुकी है। ज़हनी और फिक्री गुलामी का हम शिकार जरूर हैं, हम मफरूज हैं, हम कुफार के आगे हाथ फैलाने वाले हैं, कुफार से मांग मांग कर खाने वाले हैं। हमारी हैसियत ये है, और ये हैसियत क्यों है, ये हैसियत इसलिए है कि हमने अल्लाह के निज़ाम से रुगरदानी का रवैया इख्तियार किया। वो जिस कलमे का नारा लगाया था उस कलमे के साथ वफा नहीं की, उस कलमे के साथ वफा नहीं की, उस कलमे का निज़ाम नहीं जारी और सारी किया। ये जितने भी नबी कलमे की दावत पेश करते रहे हैं 1,24,000 कौम पेश, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करो जाएगा जन्नत लाभ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक निज़ाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक निज़ाम है, और निज़ाम वो क्या है, वो जो जाहिलियत का निज़ाम है, वो जो बेहयाई का निज़ाम है, वो जो जिल्लत का निज़ाम है, वो जो कुफर का निज़ाम है, उसको ख़त्म करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं।
और उन्होंने आकर अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर जारी सारी करने की मेहनत और कोशिश की है। आज हम देखते हैं हमारे नज़रों के सामने किस तरह करके ये जो हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके अंदर किस तरह की कानून साजी हो रही है। शराबों के बिल इस मुल्क में पास होते हैं। इस्लाम कहता है शराब हराम है, इस्लाम कहता है शराब हराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। लेकिन पार्लियामेंट क्या कहती है? शराब को हलाल करो। इसीलिए हम कहते हैं कि ठीक है, जमहूरी तौर पर तो इस्लाम को गालिब आना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की जमहूरियत हो तो लानत है। ये क्या जमहूरियत है कि इस्लाम के खिलाफ कानून साजी हो? मुसलमान हो, इस्लाम का इस्लामी मुल्क हो, पार्लियामेंट के बाद कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अंदर कलमा पढ़ने वाले मौजूद हों, मुल्क कलमे की बुनियाद पर असर किया गया हो, उसके अंदर शराब के कानून पास हो, उसके अंदर बदकारी और बेहयाई के कानून पास हो, उसके अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट वाले कानून पास हो, उसके अंदर तरह तरह की खराफात वाहियात वाले कानून पास हो, तो फिर क्या फायदा? फिर उन लोगों की कुर्बानियों का क्या बनेगा जिन लोगों ने इस वक्त अपनी जानें कुर्बान की, माल कुर्बान किए, जिनकी लाशों से गुजर कर ये पाकिस्तान हमें मिला, जो आग और खून के खेल से गुजर कर हमें पाकिस्तान मिला। तो अमल से खाली तकरीरें तो होती हैं, लीडर हज़रात आएंगे 14 अगस्त को आकर तकरीरें करेंगे, मुख्तलिफ जमातें आएंगी आकर यौम आज़ादी में आकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मकसद को फरामोश कर देंगे। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद वही था जो मदीने वाली सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का मकसद पेश किया था। इसका मकसद बिल्कुल वही था, अगर ये उस बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। और क्या ही इस बुनियाद पर है, हर एक आदमी को पता है, लोग नारा लगाते भी हैं, लोगों को मालूम भी है। तो तहरीक पाकिस्तान के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तो इसलिए कुर्बानियाँ दी कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, शांति हो, खतरात से मुल्क महफूज हो। लेकिन इस मुल्क के अंदर फिर ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया। दो कौमी नजरिया इसलिए कि हिंदू जो है उनके साथ हमारा नहीं चल सकता, जो दीन का निज़ाम है, हमारी तहजीब अलग है, हमारा तमद्दुन अलग है, हमारा दीनी तशख़्ख़ुस अलग है, इस्लामी तशख़्ख़ुस अलग है। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम एक नबी को मानने वाले हैं, हमारा काबा क़िबला अलग है। और इसलिए उनके साथ हम नहीं रह सकते, किसी भी तरीका से हमारी तहजीब उनके साथ नहीं चल सकती। हिंदुआना तहजीब का और तरीकाकार है और इस्लामी तहजीब और अपना मकसद पेश करती है, उनके साथ हमारी कोई भी किसी तरह भी नहीं हो सकती। तो इसलिए मिनासुल कौम अपने रब से ऐलान किया गया था कि इस पाक सरजमीन पर इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, इस पाक सरजमीन पर इस्लामी मसावत होगी, यहाँ पर मुआशी अदल होगा, यहाँ पर इस्लामी हुकूमत होगी, यहाँ पर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, गैर मुसलमानों का भी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुसलमानों के भी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। यहाँ पर जुल्म और इस्तिहसार की हर सूरत इसका खात्मा कर दिया जाएगा। और ये नारा इसीलिए लगाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मकसद क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का? यही कि सारे बातिल निज़ाम, सारे शैतानी निज़ाम, सारे तागूती निज़ाम उनको उल्ट पुलट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और एक जगह सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का पहरा जो है उसको बुलंद किया जाए। और जिस जगह कुफार बैठकर पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर जा रहे हैं, वहां पर अल्लाह के कलमे का ऑर्डर चले। असल मकसद ये है दुनिया के अंदर इस्लाम के कलमे का। अल्लाह ने यही बात कुरान की आयत में भी फरमाई है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। काफिर चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा दें। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह का ये फैसला है। लोग कहते हैं किस तरह इस्लामी निज़ाम आएगा, किस तरह कायम मुस्तफ़ा आएगा? कुरान झूठी किताब है। अल्लाह कहता है मेरा फैसला है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह का ये फैसला है कि उसका दीन गालिब आकर रहेगा, कुफार को कितना ही नागवार गुजरे। दीन ने गालिब आना है। हजूर ने भी ये पेश गोई फरमाई है, हर कच्चे पक्के मकान तक ये अल्लाह का दीन पहुंचेगा, पूरी दुनिया पर अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा। कुफार जितना मर्जी जोर लगा ले, मुनाफिकीन जितना मर्जी जोर लगा ले, दीन के रास्ते में रुकावट डाल रहे जितना मर्जी जोर लगा ले, अल्लाह कोई सूरत पैदा करेगा। वो सूरत पैदा कर सकता है जिसने मच्छर से नमरूदों को मरवाया, जिसने अबाबिलों से हाथियों को मरवाया, उसके लिए कोई सूरत पैदा करना मुश्किल नहीं है। हालात जितने मर्जी कठिन हो, हालात जितने मर्जी गंभीर हो, जितने मर्जी खराब हालात हो, बादल पर बेशक छाए रहे, कुफार बेशक छाए रहे, एक मिनट सेकंड नहीं लगता खुदा की खुदाई हरकत में आ जाए।
सब कुछ खत्म करके रख देती है और अपनी जीत को गालिब कर सकती है। वो तो हमारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम में से कौन कोशिश करता है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। तो हमने याद किया था कि हम एक आजाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपना मुल्क चलाएंगे, और यह किया था सीने पर हाथ रखकर हम बताएं कि हमने कौन सा वादा पूरा किया है जो हमने वादा उस वक्त किया था। लाजमी बात है वो वादा याद रखें, क़यामत के दिन वो जरूर अल्लाह के सामने अपने अरदास पेश करेंगे। वो हमारे गिरबान को पकड़ेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बंदों की कुर्बानियां दी थी। हमने क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी कि तुम यहाँ पर आकर करप्शन करो, इक़्तिदार के मजे लूटो। ये हुक्मरान तबका खास तौर पर उनकी पकड़ से नहीं बच सकेगा, इनको जरूर वो पकड़ेंगे। और हम अवाम भी अपनी सतह पर सोचें कि हम इस्लामी निज़ाम के गलबे के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कुरान और सुन्नत के निज़ाम के लिए कितनी कोशिश करते हैं। हमें भी इस बात में गौर व फिक्र करना चाहिए। हकीकत तो ये है कि अपने रब से भी बेवफाई की, अपनी कौम से भी बेवफाई की, अपने मुल्क से भी बेवफाई की। तो हकीकत के साथ अगर सोचा जाए तो इतना अरसा जब गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया, तो क्या हुआ? क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मुल्क में मुआशी लूट खसूट का दौर दौरा रहा है? जो भी आया है लूटता रहा है, लूट लूट कर चले जाते रहे हैं। जो भी आता है खजाना खा दिया आकर मुल्क को लूट कर चला गया। क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मुल्क के अंदर रिश्वतस्तानी का बाजार गर्म है? और रिश्वत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, अर्राशी वल मुर्तशी किराम मा फिन नार। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। और क्या इस मुल्क के अंदर रिश्वत का बाजार नहीं है? एक छोटी सी कागज पर आप स्टैंप लगवाने के लिए जाते हैं, आपको रिश्वत देना पड़ती है। कोई कागज पटवारी से लेने के लिए जाते हैं, आपको रिश्वत देना पड़ती है। जिस जगह भी अपना हक वसूल करने के लिए जाते हैं, आपको अपना हक भी नहीं मिलता रिश्वत के बगैर। तो आपका अपना हक होता है, लेकिन रिश्वत के बगैर आप अपना हक भी नहीं हासिल कर सकते। ये इस मुल्क की कैफियत और सूरत हाल है। तो ये अल्लाह के साथ बगावत पर निज़ाम मबनी है, ये रसूलुल्लाह के साथ बगावत पर निज़ाम मबनी है। ये निज़ाम मुस्तफा के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाला निज़ाम, इसको हटाने की जरूरत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे शरीफों को दबाया गया और रजीलों को इतनी मुस्तंदों पर बिठाया गया? वो कौन लोग हैं, वो कितने इज्जत वाले लोग हैं जिनको इक़्तिदार में हमने बिठाया था। अब 25 डिशों का खाना खाकर वो चले गए अपने घरों में। कल उन्होंने 25 डिशों का खाना खाया, अपने घरों में चले गए। अवाम को कोई पता नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या कहना था जब उन्होंने खिलाफत संभाली? क्या अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया, उसका भी उमर को हिसाब देना होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पर असर किया गया था, किस तरह करके मजहब के नाम पर भी खून का एक दूसरे के खून का बेदरिया इस्तेमाल किया गया कि भाई के खून एक दूसरे के। और क्या ये हकीकत नहीं है कि सारी दुनिया के सामने कशकोल गोई की गई, कशकोल गदाई की गई, उनके सामने कशकोल पहनाए? मुसलमान को ये जेब नहीं देता। मुसलमान के लिए ये मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है कि वो जाकर कुफार के आगे जाकर कशकोल गदाई फैलाए। उसको तो चाहिए कि खुद अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करे। इसलिए पाकिस्तान का ये दिन हम जो मना रहे हैं, ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन इसको मनाते हुए ये भी बात याद रखनी चाहिए कि हमारी तहजीब ईदों की तहजीब से अलग है, हमारा शख्स उनसे अलग है। और मेन मकसद इस मुल्क को हासिल करने का यही था। तहजीब में तुम्हारा नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस कदर शौक कि अल्लाह से भी बरहम है, ताजो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है, आलमे कैफ गए दानाई रमूज कम है, हाँ मगर इज्जत के शरार से ना महरम है। और मुसलमान उस वक्त क्या सूरत आती जब अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया था? क्या फिस्बिल्लाह का दौर था, मुसलमानों के अरूज का दौर था। मुसलमान मौत से डरता नहीं था, अल्लाह ने अरूज अता फरमाया था। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसकी आईना हस्ती में जो है अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। या तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। और इसी तरह हमारी बस्ती का ये सबब कि हम अपने दीन और कौम से गद्दारी करते हैं, दुश्मन से वफादारी करते हैं। अपने कौम से सारा वक्त लड़ लड़ कर अपने आपस में लड़ते रहते हैं। सारे इक़्तिदार परस्त लोग आपस में लड़ लड़ कर वक्त गुजार देते हैं और इकट्ठे होकर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। तो सारी तहजीब यहूद और नसारा और हनूद की इख्तियार करते हैं। तहजीब में तुम्हारा नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और फिर ये कि ताक दिल में चिराग अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, मुंह के अंदर जुबान अंग्रेजी, जिस्म पाकिस्तानी है दिल अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, हाथ है बेजोर इल्हाद से दिल खूगर, उम्मती बाइश रुसवा ये पैगंबर है, बुत शिकन उठ गए बाकी जो है बुतगर हैं, था इब्राहिम पिसर और आदम आजर हैं।
बादा आशाम नए, बादा नया, खम भी नए, अरमे काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए, वो सब कुछ हमसे छूट गया। हमने पहलों का तरीका छोड़ दिया, हमने नए नए तरीके इख्तियार करने शुरू कर दिए। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम उस तरीके को छोड़ दें। हमारे लिए वही तरीका कामयाबी का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तराक्तु फीकुम अमरैन लम तदिल्लू तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही। तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनकी पैरवी करो, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत। इसलिए उनको सामने रखते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो कुछ भी फंक्शन हो उनको गुजारते हुए भी देखना चाहिए कि हम हदूदुल्लाह को पामाल ना करें, सुन्नत रसूलुल्लाह को पामाल ना करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाज़त फरमाए और हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।